So next question number 9. हमें प्रूव करना है 1/2 plus 1/4 plus 1/8 plus so on plus 1/2 raised power n equal to 1 minus 1/2 raised power n. तो as usual हम लिखेंगे we prove this result with the help of mathematical induction and we use induction on n. So step first for n equal to 1, लेफ्ट हैंड साइड जो हमारा है वो बनेगा 1/2, राइट हैंड साइड 1 minus 1/2, n के बदले 1 देना है. So 1 minus 1/2 is 1/2. इसका मतलब this shows result is true for n equal to 1. सेकेंड जो assumption step है, assume result is true for n equal to k. That is उसका मतलब 1/2 plus 1/4 plus so on up to plus 1/2 raised power n के बदले k लिखना है equal to 1 minus 1/2 raised power k. Let's be first. So third step, we prove result is true किसके लिए? for n equal to k plus 1. That is हम क्या प्रूव करेंगे? 1/2 plus 1/4 plus so on up plus 1/2 raised power k, क्योंकि n के बदले k plus 1, उससे पहली वाली थ्योरम 1/2 raised power k plus 1/2 raised power k plus 1 किसके बराबर बेटा होना है? 1 minus 1/2 raised power k plus 1 के बराबर हमें दिखाना है. नाउ अब हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड. तो लेफ्ट हैंड साइड जो है 1/2 plus 1/4 plus so on plus 1/2 raised power k plus 1/2 raised power k plus 1. यहां से यहां तक जो है इंडक्शन हाइपोथेसिस से हम लिख सकते हैं 1 minus 1/2 raised power k plus 1 by ये 2 raised power k plus 1 है. So it is 1 minus 1/2 raised power k plus 1/2 raised power k into 2. Why? These are same, powers can be added. So it is 1 minus 1/2 raised power k कॉमन आएगा, यहाँ रहेगा 1 plus 1 minus 1/2. Why? Because minus minus plus. It's 1 minus 1/2 raised power k. 1 minus 1/2 हो गया 1/2. So it is 1 minus 1 by, फिर से bases are same, powers are added, 2 raised power k plus 1. वही तो हमें दिखाना था. इसका मतलब this shows result is true for n equal to k plus 1. Hence, by mathematical induction, result is true किसके लिए? For all n belongs to n. ठीक है बेटा? So it was question number done. Question number 9 is done. Let's move to the next question. So next question number 11. 1 divided by 1 into 2 into 3 plus 1 divided by 2 into 3 into 4 so on. n into n plus 1 n plus 2 दिखाना है n into n plus 3 divided by 4 times n plus 1 n plus 2. So step first for n equal to 1, left hand side जो है is the first term, 1 divided by 1 into 2 into 3, so it's 1/6. Right hand side n के बदले 1 देना है, it's 1 into 1 plus 3 divided by 4, it's 1 plus 1 into 1 plus 2, 4 or 4 cancel, it's 3 into 2 makes it 1/6. So this shows the result is true for n equal to 1. Second step, assume
result is true for n equal to k. That is उसका मतलब 1 by 1 into 2 into 3 plus 1 by 2 into 3 into 4 plus 1 plus 1 by k into k plus 1 into k plus 2. That's equal to k plus 3 4 times k plus 1 and k plus 2. Let me call it first. So final step, V true result is true. इसके लिए for n equal to k plus 1. मतलब हमें क्या प्रूव करना है? 1 by 1 into 2 into 3 plus 1 by 2 into 3 into 4 plus so on plus 1 by n के बदले k plus 1 लिखना है, लेकिन उससे प्रीसीडिंग टर्म आएगी बेटा k into this one, k plus 1 k plus 2 plus 1 by now n के बदले क्या लिखना है बेटा? k plus 1 plus 1 हो गया k plus 2 और k plus 1 plus 2 हो गया k plus 3. किसके बराबर होना चाहिए? n के बदले k plus 1 then k plus 1 plus 3 हो गया k plus 4 divided by 4 times k plus 1 हो गया k plus 2 and k plus 1 plus 2 हो गया k plus 3. तो हमें ये लेना है, इसको इसके बराबर दिखाना है. नाउ मैं लेफ्ट हैंड साइड लूंगा 1 by 1 2 3 plus 1 by 2 into 3 into 4 plus 1 plus 1 by k into k plus 1 and k plus 2 plus 1 by k plus 1 k plus 2 and k plus 3. यहां से यहां तक जो है इंडक्शन हाइपोथेसिस हम लिख सकते हैं k into k plus 3 and 4 times k plus 1 k plus 2 plus this one 1 by k plus 1 k plus 2 and k plus 3. So what are the common factors here? K plus 1 k plus 2. तो मैं 1 by k plus 1 और k plus 2 कॉमन लेता हूँ. यहाँ आएगा k into k plus 3 divided by 4 plus 1 by k plus 3. तब से हमें इसके बराबर आना चाहिए. It should be equal to this thing. 4 k plus 2 k plus 3 भी आएगा, लेकिन डिनोमिनेटर में k plus 1 नहीं है. ठीक है, लेट्स सिंप्लीफाई दिस. तो हमारे पास ये है x इक्वल टू 1 by k plus 1 k plus 2. तो यहाँ पे जो LCM आएगा 4 times k plus 3. So it will be k into k plus 3 whole square. Then plus 4. Fine. तो ये हमारे पास क्या आएगा? It's 1 by 4 k plus 1
फिर k प्लस 2 और k प्लस 3। इनसाइड जो हमारे पास है ये आएगा k इंटू k प्लस 3 होल स्क्वायर है, यहाँ पे k स्क्वायर प्लस 9 a प्लस b का होल स्क्वायर, k स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2ab 6k प्लस 4, so it is k क्यूब प्लस पहले मैं ये लिखूंगा k इंटू 6k हो गया 6k स्क्वायर प्लस 9k प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स k प्लस 1 k प्लस 2 एंड k प्लस 3। क्लियर? हमें दिखाना था ये इसके बराबर दिस वन। नाउ सी अब हम देखते हैं, यहाँ 4 है, k प्लस 2 है, k प्लस 3 है, 4 है, k प्लस 2 है, k प्लस 3 है, लेकिन k प्लस 1 यहाँ नहीं है। तो इट्स 4 k प्लस 2 k प्लस 3 k प्लस 1 इज हियर मिसिंग। तो हम क्या करेंगे, हम इसी को k प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, फिर देखेंगे क्या वो इसके बराबर आएगा कि नहीं। लेट मी कॉल इट सेकंड। मैं लिखूंगा कंसीडर, आपको बेटा समझ आ रहा है, ये चीज हमें दिखानी थी किसके बराबर, इसके बराबर। यू गॉट इट? देखो मैं क्या करूंगा, ये सबसे इजी मेथड है, क्यों? अदरवाइज आपको यहाँ क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करनी है। क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमें सिंथेटिक डिवीजन यूज करना पड़ेगा, तो वो आपके लिए डिफिकल्ट होगा। मैं आपको सिंपल चीज दिखाऊंगा, मैं इसी को कन्वर्ट करूंगा इस फॉर्म में। कैसे? हम देख रहे हैं यहाँ पे 4 है, k प्लस 2 है, k प्लस 3 है, लेकिन यहाँ पे k प्लस 1 एडिशनल है, तो मैं इसको k प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, वो ऑटोमेटिकली इसके बराबर आएगा। कंसीडर मैं लूंगा k प्लस 1 k प्लस 4 डिवाइड बाई 4 टाइम्स k प्लस 2 k प्लस 3। ठीक है, तो इसको इसके बराबर दिखाने के लिए देखो 4 भी यहाँ है, k प्लस 2 भी है, k प्लस 3 है, k प्लस 1 डिनोमिनेटर में मिसिंग है, तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को k प्लस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। 4 हियर k प्लस 1 k प्लस 2 एंड k प्लस 3। फाइन। तो ये क्या बनेगा, k प्लस 1 हो गया k प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू k प्लस 4 डिवाइड बाई 4 टाइम्स k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3। डिनोमिनेटर आ गया हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करना है और ये इसके बराबर होना चाहिए, देन वी आर राइट। ये होगा k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k, फाइन, देन k प्लस 4 डिवाइड बाई 4 टाइम्स k प्लस 1 k प्लस 2 एंड k प्लस 3। k स्क्वायर इंटू k हो गया k क्यूब प्लस k स्क्वायर इंटू 4 हो गया 4k स्क्वायर प्लस 1 इंटू k हो गया k प्लस 4 प्लस 2k इंटू k हो गया 2k स्क्वायर प्लस 8k डिवाइड बाई 4 टाइम्स k प्लस 1 k plus 2 and k plus 3. So it's k cube plus 4k square plus 2k square हो गया 6k square plus 8k plus k हो गया 9k plus 4 divided by 4 times k plus 1 k plus 2 and k plus 3. Let me call it third. तो ये जो है हमें इसके बराबर दिखाना था, लेकिन हमने इसको सिंपलीफाई किया एंड कम्स आउट टू बी दिस थिंग। हम लिखेंगे फ्रॉम सेकंड एंड
थर्ड वी कंक्लूड, क्या वी कंक्लूड रिजल्ट इज ट्रू, किसके लिए, फॉर n equal to k plus 1, hence by mathematical induction result is true for n equal to k plus 1। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक इजी मेथड दिखाया टू अवॉइड सॉल्विंग द क्यूबिक इक्वेशन, फाइन, अदरवाइज वी कैन सॉल्व द क्यूबिक इक्वेशन एज वेल। तो उसके लिए हमें जो हायर मेथड्स है, सिंथेटिक डिवीजन है, तो वो यूज करना है, तो उससे बेहतर है ये सिंपल है एंड बेस्ट, तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जहां भी कुछ होगा सॉल्व इट अप टू एंड, देन सी व्हाट इज द मिसिंग थिंग, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, यू विल गेट ऑटोमेटिकली। सो इट वाज वेरी नाइस क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि इसमें डिफरेंट ट्विस्ट था। अभी तक जो क्वेश्चंस आपने देखे उसमें उनमें ऑटोमेटिकली वो बन गया, लेकिन यहाँ आपको बनाना पड़ा। ठीक है बेटा, सो इट्स डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, तो इसमें आप लिखोगे वी प्रूव दिस रिजल्ट विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन एंड वी यूज इंडक्शन ऑन n, दैट नो। तो मैं लिखूंगा स्टेप फर्स्ट क्या है, फॉर n इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड इज द फर्स्ट टर्म दैट्स 1, राइट हैंड साइड क्या बनेगा, दैट्स 1/8, 2 into 1 plus 1 whole square, 2 plus 1 3 3 square 9, 9/8, 9/8 जो है it's 1 point something and it is greater than 1, since 1 is less than 9/8, 1 जो है ये लेफ्ट हैंड साइड बना for n equal to 1 और राइट हैंड साइड क्या बना 9/8, so this inequality is preserved। इसका मतलब this shows the result is true for n equal to 1। Step second, assume result is true, किसके लिए, for n equal to k, that is 1 plus 2 plus 3 plus so on plus k should be less than 1/8 2k plus 1 whole square, let it be first। थर्ड क्या, we prove result is true for किसके लिए, n equal to k plus 1, that is 1 plus 2 plus 3 plus 1 plus k plus 1 should be less than 1/8, n के बदले क्या लिखना है, 2 into k plus 1, ऐसे प्लस 1 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स ये जो है इट शुड बी 1/8, इट्स लेस देन हियर, ये क्या बनेगा 2k plus 2 प्लस 1 क्या हो गया 2k plus 3 का होल स्क्वायर, मतलब ये जो है ये आपको दिखाना है लेस देन 1/8 2k plus 3 का होल स्क्वायर। नाउ अब मैं लेफ्ट हैंड साइड लूंगा, इट्स 1 plus 2 plus 3 plus 1 plus k plus 1, यहां से यहां तक जो है बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस इट इज लेस देन व्हाट 1/8 2k plus 1 का होल स्क्वायर प्लस ये अपना k plus 1 एंड यू सी इट्स 1/8 को हम कॉमन लेंगे, it's 2k plus 1 whole square plus 8 times k plus 1, ठीक है बेटा, so it's 1/8, it's here 4k square plus 1 a square plus b square plus 2ab, total of 4k plus 8k plus 8, so it's 1/8
ये 4k² प्लस 8 4 हो गया 12k प्लस 8 और 1 हो गया 9। ठीक हो गया। ये हम लिख सकते हैं 1/8, ये लिख सकते हैं 2k प्लस 3 का होल स्क्वायर। हाउ a स्क्वायर होगा ये, b स्क्वायर हो गया 9, 2ab 2 to the 4 12k। तो ये हमें प्रूव करना था। तो उसके बाद आपको पता है क्या लिखना है, दिस शोज द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, हेंस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल n belongs to n। So this was question number 18. It's done. Question number 23 आपको प्रूव करना है, prove that 41 raised power n minus 14 raised power n is multiple of 27 for all n belongs to n। तो हम इसमें लिखेंगे we prove this result with the help of mathematical induction and we use induction on n। Step first, for n equal to 1, for n equal to 1 हमारे पास ये जो 41 रेज पावर n माइनस 14 रेज पावर n है, ये क्या बनेगा 41 n के बदले 1 देना है, तो ये 41 यहाँ पर है, so it's here 41 n के बदले 1 minus 14 raised power 1, so it is 41 minus 14, it is 7, 8 3 minus 1 2, it's 27। तो आपको दिखाना चाहिए मल्टीपल ऑफ 27, so it's clear it's multiple of 27। this shows result is true for n equal to 1। second step, assume result is true for n equal to k। n equal to k मतलब that is 41 raised power k minus 14 raised power k is multiple of, अगर ये multiple of 27 होगा, ये होगा 27 into some natural number। इसका मतलब that is 41 raised power k minus 14 raised power k को लिख सकते हैं 27 into say some m, where m is natural number। let me call it first, हम लिखेंगे स्टेप थर्ड, we prove result is true for n equal to k plus 1। that is हमें क्या प्रूव करना है, 41 raised power k plus 1 minus 14 raised power k plus 1 जो है it should be multiple of 27। multiple of 27 का मतलब हमें दिखाना ये it should be 27 into some natural number, some natural number that will be p, ये हमें दिखाना है। now मैं लूंगा अब ये लेफ्ट हैंड साइड 41 रेज पावर k plus 1 minus 14 रेज पावर k plus 1। सी ये 41 जो है मैं लिखूंगा 41 रेज पावर k into 41 y बेस आर सेम पावर सेलेक्टेड माइनस ये 14 रेज पावर k plus 1। ये इंडक्शन हाइपोथेसिस है, 41 रेज पावर k को बेटा हम लिख सकते हैं 27m, ये यहाँ जाएगा प्लस 14 रेज पावर k, ये 41 मैं ऐसे लिखूंगा, 41 रेज पावर k जो है इसके बदले क्या लिखेंगे 27m plus 14 रेज पावर k। You got it? Then it's minus 14 रेज पावर k plus 1 जो है it's 14 रेज पावर k plus 1। तो हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है it's 27 into some natural number। तो ये मैं लिखूंगा 27 into
41m ऐसे प्लस इट इज 14 रेज पावर k इंटू 41 माइनस, इसको भी लिख सकते हैं 14 रेज पावर k इंटू 14, ये हो गया 27 41m प्लस यहाँ पे 14 रेज पावर k कॉमन आएगा, इट्स 41 माइनस 14, so it's here 27 into 41m plus 14 raised power k, 41 minus 14 it is again 27, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा 27, it is 41 m plus 14 raised power k, देखो m नेचुरल नंबर है, 41 नेचुरल नंबर है, 14 नेचुरल नंबर है, रेज पावर k, सो इट्स होल नेचुरल नंबर, लेट वी कॉल इट 27p, और p जो है p इसको डिनोट करता है, इट इज नेचुरल नंबर। इसका मतलब ये जो था इट इज मल्टीपल ऑफ 27, दिस शोज रिजल्ट इज ट्रू for n equal to k plus 1. Hence, by mathematical induction, result is true for all n constant. ठीक है बेटा, तो ये आपकी क्वेश्चंस थे मैथमेटिकल इंडक्शन में। अगर आपको और कोई क्वेश्चन दिखाना होगा बेटा तो आप मुझे बोलोगे, जो क्वेश्चन दिखाना होगा तो मैं दिखाऊंगा। तो विश बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से इसको करो। तो इट्स वेरी सिंपल एंड इजी। थैंक यू वेरी मच।